Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today the topic will be burns and the reference of this topic is from Manipal Manual of Surgery BDS. But please first like and subscribe my channel for more videos like this and more PPTs from BDS subjects and topics. Starting with the definition of burn. Burn is a type of collective necrosis which is caused by heat. That heat is transferred from the source to the body. किसी भी सोर्स से हमारी बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं burn. When talking about burn, two more terms comes even in our mind, that is frostbite and scald. When burn is caused by extreme heat, and frostbite is caused by extreme degree of cold, and it is uh, occurs in cold countries. Scald is a burn caused by moist heat or steam, and for burn the temperature should not be less than 44 degrees Celsius. Now the types of burn are chemical, thermal, electrical, chemical, and radiation. Thermal can be of two types, that is flame burn and scald burn. There is another classification for burn, which is on the basis of thickness or degree. On the basis of thickness, there are superficial, partial, partial, and full. And according to this, superficial is termed as first degree burns. Superficial partial is considered as second degree burn, and deep partial is considered as third degree burn. And in superficial, the depth is up to epidermis. In superficial partial, it is partial dermis papillary region, up to dermis papillary region, and in deep partial, it is up to reticular region. And in full, there is hypodermis, subcutaneous tissue is also involved, and these are the characteristics. In first degree, there will be pain, redness, and mild swelling. In case of superficial partial, pain होगा, blisters will be there, severe swelling होगी. In deep partial, the white, it will appear white, leathery, and relatively painless, because in this the nerve endings are destroyed. And in full thickness, it estuary formation will be there. Talking about the pathophysiology of burn shocks, although the exact mechanism is not known, that why post-burn microvascularization changes occurs or hypovolemia occurs, this is not known. And because of that, low cardiac output and poor tissue perfusion is there. So these eight mechanisms can be the cause of these post microvascularization changes and hypovolemia, that is increased capillary permeability, decreased plasma contact pressure, increased capillary hydrostatic pressure, reduced clearance of fluid and protein, intracellular fluid accumulation due to impaired cell membrane function, increase in osmotic pressure in the burnt tissue, and increased evaporative water loss and depressed myocardial functions. Now talk next, the burn patients and the kidney. जब हमारी बॉडी में बर्न होता है किसी भी एरिया पे, तो किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? All as we studied here, that increase evaporative water loss, तो water loss बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो किडनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से जो ADH है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है from the posterior pituitary, and this is a compensatory mechanism of kidney. Also, the aldosterone is released to cause maximum sodium resorption, and also the acute tubular necrosis can also occur because बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. ऑल्सो किडनी इंजरी भी हो सकती है ड्यू टू मायोग्लोबिन. Now, talking about the metabolic response to the burn.
मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्या होता है? First of all, gluconeogenesis and glucogenolysis is increased. Lipolysis is also increased. Increased in fatty acid release, which is restrified into triglycerides, resulting into increased accumulation of fat in liver. Also, there is proteolysis, increased production, and because of that, protein is excreted in urine. And also, an important point that is catecholamines are increased. Um, in burn patient, the patient requires more than 1 gram per kg per day of proteins. तो इसके लिए हमें मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स देखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस होने लगता है, तो प्रोटीन जो है वो यूरिन में ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, तो हमें उसको प्रोटीन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। जब हमारे पास बर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी केयर, दिस स्लाइड इज ऑफ इमरजेंसी केयर। जब भी हमारे पास बर्न का पेशेंट आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे 100% ऑफ O2 देंगे। अगर वो अनकॉन्शियस है तो हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, प्लस हम आईवी देंगे उसको, प्लस लैक्टेटेड लिंगर सॉल्यूशन थ्रू आईवी उसको हम देंगे। क्लोथ्स और ज्वेलरीज रिमूव कर देंगे इमीडिएटली, बिकॉज स्वेलिंग कॉज कर देते हैं। एंड स्मॉल बर्न को हम कूल वाटर से ट्रीट करते हैं, नॉट फ्रॉम आइस कूल्ड वाटर। एंड द पेशेंट शुड बी wrapped इन क्लीन शीट्स टू प्रिवेंट infections. Now, management of burn. The management of burn is in this whole slide. First of all, first aid, history taking, hospitalization, assessment of depth of burn, assessment of events in terms of body surface area. Then vitals are maintained, Rayleigh tubes is given, replacement of fluid, broad spectrum antibiotics are given, and treating burn wounds. तो फर्स्ट एड में सबसे पहले हम वाटर बाथ देते हैं टू रिड्यूस द हिस्टामिन एंड एडिमा, और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। देन हिस्ट्री टेकिंग। In case of history taking, we use a mnemonic that is called AMPLE, and it stands for AMPLE means A means allergy, medication, post medical history, लास्ट मील एंड इवेंट्स रिगार्डिंग इंजरी। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या क्या लेते हैं कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, वो कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा लाइक डायबिटीज़, एंड कोई पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं हम, उसकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, उसने लास्ट मील क्या ली है, एंड ई है इवेंट रिगार्डिंग इंजरी, कि इंजरी हुई कैसे है। देन उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे हम, और वून को ट्रीट करेंगे, उसको एयर कंडीशन की फैसिलिटी जहाँ होगी वहाँ हम उसको रखेंगे पेशेंट को। देन हम उसको असेस करेंगे कि उसकी डेप्थ कितनी है बर्न की, दैट इज पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न। Then we will assess the events in terms of body surface area, कि body surface area के हिसाब से कितना burn हुआ है, इसको हम rule of Wallace से करते हैं डिटरमाइन, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन वाइटल्स लाइक बीपी, रेस्पिरेशन रेट, ये सब हम उसको मेंटेन करते हैं। देन रेलेस ट्यूब क्या होती है, जो बर्न पेशेंट होता है वो उसमें एक्यूट स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम, और ब्लीडिंग ट्रीट करने के लिए स्टमक में हम कोल्ड वाटर वॉश इज गिवन थ्रू रेलेस ट्यूब। इसमें हम इसको एंटासिड्स प्लस H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर देते हैं, सच एज रेंटिडीन 150 mg ट्वाइस अ डे आर ऑल्सो गिवन। देन हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन
डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। प्लस हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसको प्रोवाइड करेंगे, लाइक स्फेलोस्पोरिन्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक्स में हम पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन दे सकते हैं 10 to 12 mg, ठीक है, एंड पेटिडीन दे सकते हैं 65 to 70 mg। और लास्ट में अगर बहुत सीवियर है तो हम ट्रीट करेंगे वूंड को सर्जिकली। देन हमने यहाँ पे जो पढ़ा है असेसमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये रूल क्या कहता है, दिस दैट इसने पूरे जो हमारी बॉडी है उसको 9% में डिवाइड किया है। हेड एंड नेक को 9% लिया है, अपर लिम्स को 9, अपर एंड बैक एंड फ्रंट को मिला के हो गया 18। देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक हो गया 18। देन फ्रंट एंड बैक को मिला के देन लोअर लिम्स भी हो गया 36%, एंड बर्न ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज 1%। तो इसके हिसाब से हम कितना बर्न हुआ है पेशेंट को वो निकालते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और पढ़ा था, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, दिस वन। ये हम कैसे करते हैं, अब हम जब बर्न होता है तो एक्सट्रीम वॉल्यूम हाइपोवोलेमिया हो जाता है, तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। The first formula is known as Moy and Brackley formula. This formula says that the percentage of burn into body weight in kg is divided by 2. हम जितना परसेंट बर्न हुआ है और उसका जितना बॉडी वेट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर हम हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 rations in 12 hour and 2 rations in next 12 hour and 1 ration in next 12 hour means हमारे पास जो भी है इससे आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा उसको हम फर्स्ट 12 आवर्स में देंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड देन हम उसको नेक्स्ट वो अमाउंट 12 आवर्स में देंगे, एंड देन नेक्स्ट 12 आवर्स में हम लास्ट राशन देंगे। And there is an important note that after 36 hours, depending upon the urinary output and depending on the requirements of the body, about 2 to 3 liter of fluid are given per day. 36 आवर्स के बाद हम यूरिनरी आउटपुट और रिक्वायरमेंट्स को देख के 2 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड हमें पर डे उसको देना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट फॉर्मूला इज नोन एज पार्कलैंड्स फॉर्मूला। दिस सेज दैट 4 ml per person per kg is given in first 24 hours, and then half in first for 8 hours, and then 1/4 in next 8 hours each. And the last formula is modified Brock's formula. This says that first 24 hours में हम 2 ml per person per burn per kg देंगे। फर्स्ट 24 आवर्स में हम 2 ml देंगे जितना भी बर्न हुआ है और पर केजी जितना है उसके हिसाब से। उसके बाद हम उसको मेंटेन करके रखेंगे 2500 ml के साथ। प्लस सेकेंड 24 आवर में हम 50% ऑफ डिफिशन देंगे, उसको भी मेंटेन करके रखेंगे। जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो 50% इन द फर्स्ट 8 आवर्स आफ्टर द इंजरी एंड 50 इन नेक्स्ट 16 आवर्स। नाउ दिस आफ्टर इंजरी, ये जो आफ्टर इंजरी है हम ये वो टाइम लेंगे कि जब उसको इंजरी हुई है, नॉट कि जब वो हमारे पास आया है, हम वहां से उसको 8 आवर्स काउंट करेंगे। देन पर्ल्स ऑफ विजडम इज अ टर्म, ये कहता है द लॉस ऑफ intravascular fluid will start when burn size approaches 10 to 15% of total body surface area। ये क्या कहता है, जब बर्न 10 to
10 to 15 डिग्री पहुंच जाता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया के, तो इंट्रावेस्कुलराइजेशन ऑफ फ्लूइड स्टार्ट हो जाती है। और जब 25% पहुंच जाता है तो फ्लूइड लॉस स्टार्ट हो जाएगा वेसल्स से भी एंड फ्रॉम द रिमोट एरिया ऑल्सो। जो बॉडी के रिमोट एरियाज हैं और वेसल्स से भी फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस हम उसको पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स में हम कोलॉइड्स नहीं देते बिकॉज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स, हाउ वी ट्रीट? सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी गिव देम द एंटीसेप्टिक एजेंट्स एंड सेल लाइक सैल्वोन एंड आयोडीन। हम वूंड को क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक एजेंट से, देन उसकी ड्रेसिंग करेंगे। अगर ड्रेसिंग हो सकती है तो हम ड्रेसिंग करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो हम सर्जरी करते हैं। इन केस ऑफ ड्रेसिंग it can be open method and क्लोज मेथड। ओपन मेथड में हम क्या करते हैं, उसको एक गुड रूम में रखते हैं, फ्यूगिमेटेड वार्ड में रखते हैं और वूंड के ऊपर सिल्वर सल्फाइडाइजिन क्रीम लगाते हैं और उसको लेफ्ट ओपन छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लोज मेथड में हम उसको सिल्वर सल्फाइडाइजिन हमने लगाया, उसके साथ हम 1% सिल्वर नाइट्रेट लगाएंगे, 1% सिल्वर नाइट्रेट प्लस मीफिडीन कॉटन रोल्स अप्लाइड करते हैं, उसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि लेस पेन रहेगा और इन्फेक्शंस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे। बेटर मेडिकेशन है ये। अगर बहुत सीवियर बर्न है तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी हम टेंडेंशियल एक्सेशन से करते हैं, followed by grafting done after 48 to 72 hours, in which the burn wound is excised tangentially till fresh bleeding occurs। तो हम इसको 2 से 3 दिन बाद हम इसको करते हैं ग्राफ्टिंग को। इस तरीके में टेनेंजियल एक्सीशन में हम 48 2 to 3 days के बाद वी डू ग्राफ्टिंग ताकि फ्रेश ब्लीडिंग आ जाए। देन हम उसको स्क्रीन ग्राफ्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सर्कमफ्रेशियल डीप सेकेंड एंड थर्ड बर्न। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? ये प्रिवेंट करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया। जब वहाँ पे फ्रेश ब्लड आ जाएगा तो जो डिबेरिश होगा वो हट जाएगा, तो सेप्टिसीमिया के चांसेस विल बी लेस। डिक्रीज इन हॉस्पिटल स्टे, यूजुअली 2 to 3 weeks लेते हैं। थर्ड डिग्री बर्न, this will be reduced। नेक्स्ट हमने पढ़ा इन क्लासिफिकेशन वी स्टडीड दैट टाइप ऑफ बर्न्स में इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न जो है इसके टाइप्स हो सकते हैं ट्रू इलेक्ट्रिकल इंजरी, फ्लेम बर्न एंड आर्क बर्न। ट्रू इलेक्ट्रिकल बर्न जो होते हैं वो हीट जनरेट हुई है जो करंट पैसेज से, उसकी वजह से होता है। फ्लेम बर्न किसी इलेक्ट्रिकल फ्लैश और स्पार्क की वजह से है। एंड आर्क बर्न is due to intense heat at termination of current flow. It occurs when it jumps the gap between the source and the conductor. For example, flexure aspect of joint. Next, classification of electrical burns is acute injuries and delayed injuries. In acute injury, there are two types: the burn injuries due to electrical current itself and other associated injuries जो खुद इलेक्ट्रिक करंट से हुई है। तो इसमें आते हैं लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इंजरीज। लो वोल्टेज इंजरीज में लेस देन 100 वोल्ट्स जो करंट होगा, जिसमें फ्लैश बर्न्स एंड क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट बर्न्स, कि हमारे किसी फ्लैश से बर्न हो गया या हम कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। एंड हाई वोल्टेज विल बी जो ज़्यादा होगा 1000 वोल्टेज से, लाइक आर्क और कॉन्टेंट, फ्लैश, एक्सटेंसिव with vascularization, impairment of extremities, compartment syndrome and dry gangrene. In case of high voltage हमें compartment syndrome देखने को मिलता है and
ट्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। नाउ कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, जब वहाँ कोई भी बर्न होता है तो उस पे हम चेक करते हैं कुछ चीजें, दैट इज हम वहाँ पे क्या चेक करेंगे, पेन, पर्ल्स, ये सब चेक करेंगे। अगर वहाँ पे कोई चीज नहीं है, पर्ल्स नहीं है या पेन नहीं हो रहा, तो उसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोल देते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड इंजरी लाइक थर्मल बर्न्स ड्यू टू इग्निटेड क्लोथ, और एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, इसमें कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, injuries to other internal organs due to fall of electrical current. Now delayed injury, delayed spinal cord injury, delayed peripheral neuropathy and optic nerve atrophy. स्पाइनल कोड को इंजरी हो गई है, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इंजरी है, या फिर ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो गई है। देन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजरी किसी पेशेंट को हो गई है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम उसको थर्मल जो भी इनिशियल तो वही होगा जो थर्मल बर्न में होता है, ठीक है। लो वोल्टेज इंजरी में सुपरफिशियल कंजर्वेटिव हम ट्रीट करते हैं, एंड डीप टर्मल में हम टेंजेंशियल एक्साइजेशन से करते हैं या स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट से उसको करते हैं। अगर हाई वोल्टेज है या फ्लैश बर्न्स हैं तो सुपरफिशियल कंजर्वेटिव, डीप बर्न, आर्क और कॉन्टेक्ट बर्न्स में हम वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो वैस्कुलर होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इमीडिएट फिशियोटमी या एम्पुटेशन कर देते हैं। हाथ में हुआ है तो हम हाथ को काट देते हैं, अलग कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज केमिकल बर्न। जो केमिकल बर्न्स होते हैं वो अनकॉमन बर्न्स होते हैं, इंडस्ट्री लैब या होम में हो सकते हैं, हाउस होल्ड की किसी भी चीज से, इंडस्ट्री में केमिकल्स HCl वगैरह से हो सकते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट पीरियड एंड इफेक्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। कोई भी एसिड जो है हम उससे प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट में है तो हमारे सिस्टम में इसमें क्या होता है, वो सिस्टमैटिक हमारा जो सिस्टम होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स दैट कॉज इंजरीज, it can be acids, alkalis or other inorganic substance. Acids में like HCl, sulfuric, nitric, hydrofluoric acid, phenol. uh, in case of acidic burn, cause it causes coagulative necrosis of skin due to rapid conversion of protein to coagulum salt of the acid. The coagulative ester prevents these acids to penetrate deeply. Activity is in the tissue continues for long time. इसमें coagulative necrosis हो जाती है और एक प्रोटीन की वजह से कोगुलम बन जाता है जो हमें जो है प्रिवेंट करता है डीपली पेनिट्रेटिंग of acids. Then alkalis like sodium hydroxide, ammonium, barium and calcium hydroxide. In this case, these are corrosive agents and produce extensive denaturization of tissue proteins. These produce more tissue destruction than acids. First aid क्या होगी इसकी, early immigration of injured area with large volume of water. Other इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, लाइक वेट सीमेंट, लाइम, फॉस्फोरस, पोटेशियम परमैंगनेट, केरोसिन, पेट्रोल, नेफ्थलीन बॉल्स। नाउ इन दिस केमिकल इंजरी, इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो ऑक्यूलर इंजरीज होती हैं एंड वेरी कॉमन इन एसिडिक एंड एल्कली बर्न्स. Severe and forceful rubbing increases the severity of injury. अगर हम उसको रब कर रहे हैं सीवियरली तो इंक्रीज हो जाती है सीवियरिटी ऑफ इंजरी. वेरियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं इसमें, स्लगिंग ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम, एडिमा, corneal ulceration, perforation. Now in this it is in
case of in case of chemical injuries, we treat that by hydrotherapy. This is an recent advantage. Hydrotherapy in burns, it refers to the usage of external water, may be very cool, to run over the burnt part of the फॉर अ फ्यू मिनट. मेथड क्या हो गए? इमर्जन या फिर शावर. हम पूरा इमर्स कर देते हैं वाटर में, या शावर, उस शावर की तरह उस पे रिजन करते हैं. हाउ डज इट वर्क? ये क्या करता है? रिमूव कर देता है, वूंड को क्लीन कर देता है, पस रिमूव कर देता है, एंड फ्लूइड लॉस थ्रू स्किन को प्रिवेंट करता है, स्कारिंग फॉर्मेशन को मिनिमाइज करता है, प्रोड्यूस मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर वूंड हीलिंग, मिनिमल रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस. ड्यूरेशन क्या जो होती है वो 10 to 20 minutes होती है, एंड sedation इज बाय जनरल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड एज इट कैन. Now we have studied almost whole chapter of burn. Now this is the quiz time. These are the questions. So now we have studied the almost the chapter of burn. These are the MCQs. This is the MCQ time. So please reply the answers in comment box.